جو کرنے آئے ہو وہ کرو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں بکری جی خوش آمدوں کا پھر ایک اپنا ہی ماحول ہوتا ہے۔ خوش آمدوں میں تو بے عملوں کو عاشق بنا دیا جاتا ہے، جب خوش آمد والی کیسٹ ڈلتی ہے نا پھر فاسقوں فاجروں کو عاشق بنایا جاتا ہے۔ لیکن میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے۔ بھائی ادھر کون ایسا بیٹھا ہے جس کا صاحب وہ نہیں ہے؟ کوئی اگر بے نماز بیٹھا ہے اس کا صاحب بھی اللہ ہی ہے، کوئی نمازی بیٹھا ہے اس کا صاحب بھی اللہ ہی ہے۔ صاحب تو سب کا وہی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ وہ تو سب کہہ لے کہ یہ بتاؤ اس کا کون ہے؟ آئے تو اس کا ہونے تھے نا، ہم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا تھا کہ ہم تیرے ہیں۔ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ پھر بابے نے اور دوربین بدائی اور کہتے کیا ہیں؟ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ صاف دا ہونا پھر کوئی سوکھا کام تو نہیں نہ۔ اس لیے حضرت جی ہونا نہ ہونا تو بات کی باتیں ہیں، لیکن کوشش ہر وقت یہی کرنا کہ میں صاف دا ہو جاؤں۔ اور پھر جو ہو گئے نا صاحب کے، قربان جاؤں، انہوں نے تو پھر کمال ہی کیا نا۔ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، جو ہوئے صاحب کے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تو ہے۔ جڑے پھر صاحب دے ہوئے پھر انج ہوئے، انہوں نے اپنی ہستی بھی گوا دی۔ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے۔ اسی سارے آنے بھی صاحب دا ہی ہونا سی، لیکن وہ پتہ نہیں کدے کدے گئے ہیں۔ کوشش کرو یار، کوئی کوشش، اللہ کی قسم ہے دن آنے والا ہے بڑی جلدی، یہ کچھ بھی نہیں رہے گا جی۔ یہ سلیمان ایتھے ہی سلیمان ہے، مصباحی صاحب ایتھے ہی مصباحی صاحب نے، اتنے کوئی مصباحی صاحب نہیں ہونا، اتنے میں بھی اسے لائن چی کھلوتا ہونا ہے۔ دو لائناں ہونی ہیں، یہ تہاڈی مرضی ہے کیڑی چ کھلونا ہے۔ ایک لائن کیڑی ہے؟ سورہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کتنے نے مجرم سارے لے آؤ۔ اور ایک اور لائن بھی ہونی ہے دوجی، ان کے لیے اللہ کیا فرمائے گا؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ تہاڈی مرضی ہے، جہدے مرضی کھلو جو، اختیار ہے بھائی تجھے۔ سلام قولا من رب الرحیم والی چ کھلونا ہے یا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ والی چ؟ یہ تینوں اختیار ہے، انہیں تیری رسی ٹلی چھڈی دی۔ تو یہ نہ سمجھ کہ اگر تو مسجد میں نہیں آ رہا تو وہ تجھے بلا نہیں سکتا، اس کو آتا ہے بلانا، وہ بلا سکتا، لیکن اس نے تیری رسی دراز کر دی۔ اچھا جا بندیا، وقت آئے گا پھر تینوں پوچھیں گے، اس لیے پوری کوشش کرو حضرت جی کہ کچھ ہو جائے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گیا۔ پتہ ہے سلمان فارسی کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جنت دے دے، لیکن جنت دعائیں کرتی یا اللہ جلدی جلدی ہے 4 مینوں دے دے۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، مولا مرتضیٰ شیر خدا، حیدر کرار، مولا مشکل کشا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا نمبر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، تیسرا نمبر حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا نمبر حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، لیکن سنو جن کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ جنت سلمان کی مشتاق ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، فارس سے تھے یہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इतना नवाजा, फरमाया सलमान मेरी अहले बैत में से है। हजरत अगर हम नक्शबंदियों का शजरा पढ़ा जाए ना तो उसमें भी हजरत सैयदुना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम मुबारक है। हजरत सैयदुना साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसका मफहूम है, फरमाते हैं हजरत सलमान फारसी बीमार थे, मैं आपकी इयादत के लिए गया तो कहते हैं रो रहे थे। कहते मैंने रोते देख के पूछा सलमान क्यों रो रहे हो? भाई तुम तो अगर इस बीमारी में मौत आ जाती है तो मौत के बाद तो फिलफोर जाके तुम सहाबा से मिलोगे और अपने महबूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी, तुम क्यों रो रहे हो हैं? और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इस हाल में इस दुनिया से पर्दा फरमा गए कि वो तुझसे राजी थे, फिर तेरे रोने की समझ नहीं आ रही मुझे सलमान। हुजूर फरमाते हैं जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक है, उनमें से हजरत सलमान आपका नाम है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सलमान मेरी अहले बैत में से है, फिर आप क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? तो आगे से हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं इसलिए नहीं रो रहा कि दुनिया छूट रही है, या मैं मौत के डर से नहीं रो रहा, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि महबूब अलैहिस्सलाम ने हमसे वादा लिया था कि दुनिया ना जमा करना, और इस वक्त मेरे घर में कितनी दुनिया मौजूद है, मैं इस गम से रो रहा हूँ। हजरत साद बिन नबी वकास फरमाते जब मैंने हजरत सलमान फारसी के घर को देखा तो सिर्फ एक बाल्टी थी घर में, सिर्फ एक बाल्टी थी घर, जिससे वो वुजू करते थे और जिससे वो कपड़े धोते। ये थे सिर्फ एक बाल्टी हुए हो तो रोन कि हुजूर ने साढ़े को वादा लिया ही कि दुनिया इकट्ठी नहीं करनी, सारे मारो हजरा अपने अपने गिरेबान च चाती सी की नहीं इकट्ठा कर लिया। सूद साढ़े घर, राम साढ़े घर, लोगों का हक खा के असी घर इकट्ठा कर लिया सारा। ओ भाई क्या मुंह दिखाना तूने जा है, क्या मुंह दिखाना कल जा। इसलिए पुत्र अल्लाह नू राजी करो। अल्लाह नू मेरे कल भी गड्डी है, लेकिन मैं हुजूर दे मिंबर ते बैठा दा वां, आराम दी गड्डी नहीं है। मैं आज अगर किसी बंदे से तकरीर का 2 लाख रुपया मांगू मुझे लोग देने को तैयार हैं, लेकिन मैं कहना उस दिन आन तू पहले पहले मैं मर जा जिस दिन मैं किसी को 1 रुपया भी मंगा। मैं नहीं इकट्ठा किया, मेरा आज दुनिया में नाम है, मेरा कार अज भी कराए थे। लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, असी भी नहीं किसी अगे ढिड तू कपड़ा चुकते हैं। चल रब ने भरम रखे है पुत्र, लाल इकट्ठा करियो, भुखे रह लियो, लाल इकट्ठा करियो। 4 दिन की जिंदगी है, इटली के सोफे ते जनाब है स्पेन की कराकरी, ये सब छड़ के जाना मियाँ, उस कबर ते भी कुछ ला जिथे जाके रहना ही। मैं उस दिन 2008 में वालदा साहबा का इंतकाल हुआ हजरत, मैं उस दिन वालदा साहबा की कबर ते गया, मैंने खौफ आए वे भाई अंदर दे भेद ते रब ही जानदा है, लेकिन मुझे अपने अल्लाह से अच्छा गुमान है, मेरे अल्लाह ने मेरी अम्मी को माफ़ कर दिया होगा, मेरा अपने रब से गुमान है। लेकिन हजरत जी फिर भी देख लो तकरीबन 13 साल हो गए ने अम्मी जी नूं उस सारे नहीं जाना है, भावें को आम है भावें कोई खास है। इसलिए अपने अल्लाह को राजी करो, साहिब सब का एक है, लाखों में कोई नहीं है, करोड़ों में कोई एक है। कोशिश करियो साहब नाल वफा करियो। और फिर मैं पढ़ता हूँ ना जी, असी तो मरला मरला जगह नहीं छड़ सके, ये हैं फिर वफा करने वाले। लामा मोहम्मद इकबाल सारा कुछ ही छोड़ दिया और कहा नहीं बस मुझे तू चाहिए हैं। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ हैं। और कमाल लिखा जी इकबाल, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। तू तो इत्थे ही रह गए ना। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। सबसे पहला जो मैंने अपने घर से सीखा था, जिन्होंने कहते हैं जिथे जमिया फतेहगढ़, जो
अबू जी की तरफ से मुझे घर आया, मेरी छोटी बहन रहती है उसमें हजरत, तो वो पहले जगह वही है, उस पे पहले मेरे दादा अबू के नाम की प्लेट थी हजरत जी, चौधरी इलमदीन दी जगह है। दादा अबू फोत हो गए, फिर मेरे अबू जी के नाम की प्लेट आ गई, ये जी जगह जी मोहम्मद बूटे दी है, फिर अबू जी भी फोत हो गए, अजकल मेरे नाम की प्लेट है उहदे उत्ते, ये जी ओदी जगह है। सारे सियाने बैठे दे हो, मेरी भी है कि मेरी भी कोई नहीं है। मैंने अपने 37 सालों में हजरत जी तीसरा नाम देखा उसी जगह पे, जगह वहाँ की वहाँ ही है, तीसरा नाम। मैं एक दिन हजरत दी बारगाह चर्च की थी, मैं हजरत जी जगह एक ही है और उत्थे ही है, तीजी प्लेट लग गई है जगह उत्ते, ये है कि है जगह उत्थे ही है, तीसरी प्लेट लग गई है, ये हुण की डिया है। मुझे फिर आपने एक शेर सुनाया, ठंडे पड़ गई है, मुझे फरमाने लगे ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। तू एवं ही मोंडे चौड़े कर करके फिरने है, मैं मालक हाँ, तू मालक नहीं, तू माली है। मालक होवे, मालक होवे, तू हुकूमत पाकिस्तान के कागजात जिते मालिक है, लेकिन जेडे असल कागज उत्ते पे दे ना ओदे च तू माली है। जेडे असल कागज ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कल पे, उत्थे तू माली लेके आता है, जगह उत्थे ही रहनी है, माली बदलेगा। दादा अबू माली, पता नहीं जब दादा अबू हिजरत करके कश्मीर से यहाँ आए उससे पहले कौन माली था उसका, अबू जी माली, फिर मैं माली, अब पता नहीं मेरे बाद कौन माली है। तू माली होके जी लाई आंडे हैं, माली तो नहीं जी लांदा है, उसको पता नहीं कब मालकों ने कट छड़ना है इस ड्यूटी तो। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। और हजरत जी आखिरी मिनट, बात खत्म, देखो ये सियाने लोग थे हजरत। कीम खादिम अली तोती बोला जी अपने वक्त में, कीम खादिम अली साहब का, जिसको कहते हैं ना तोती बोलना, तोती बोला कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आज भी आपके सियालकोट में पूरा रोड है बाबे के नाम पे, खादिम अली रोड हजरत। अपने वक्त की क्या क्या हस्ती होंगी हजरत जी, एवं नहीं रोडों के नाम डलते हजरत जी। बड़े बड़े लोगों ने कोशिशें की हमारे नाम पे भी कुछ हो जाए, एवं नहीं होता। खादिम अली रोड हजरत जी, खादिम अली। और जो जगह है जहां कीम खादिम अली साहब बैठा करते थे, जो प्रॉपर्टी को जानने वाले लोग हैं उनको पता है कि आज वो जगह करोड़ों की नहीं है, अरबों की जगह है। वो रोड के ऊपर जगह, प्लाजे बन गए हैं अब वहां कहीं। वो हकीम साहब सुनाया करते थे, कीम खादिम अली साहब दा को इंजीनियर मुरीद हो गया। भाई सबको अपने पीर से प्यार होता है, उसको भी था। एक दिन आ गया, आके अर्ज करता है हजरत जी तुसी किसी रोड च भी जाके बह जाओगे ना, किसी जंगल च भी बह जाओगे, लोगों ने उत्थे भी आ जाना, बड़ी कीमती जगह है, इजाजत दवो मैं नक्शा बना के ले आवा तो इत्थे प्लाजा बनाइए। शरीयत में प्लाजे पे कोई मुमानत नहीं है जी, बना सकते हैं आप। आगे से कीम खादिम अली साहब फरमान लगे रहन दे यार, असी नहीं प्लाजा बनाना। वो बंदा आगे सिर करता हुजूर कोई वजह, फरमाया यार असी अपने वड्डियां कोलों एक गल सुनीए तो असी नहीं प्लाजा बनाना कोई। वो कहने लगा हजरत ज़माने के अंदाज बदले गए, नए साज हैं, राग बदले गए, हो सकता है जो बात आपने सुनी हो वो पुराने वक्तों की हो, ज़माना बदल गया, जदीद दौर है, हो सकता है वो बात इस ज़माने में काम ना करे। आपने फरमाया तू इस ज़माने को छोड़, जो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा ना तब तक ही वो बात ठीक ही रहेगी। वो कहता है जनाब की सुने हैं तुसी अपने वड्डियां कोलों? आए हाय, फरमान लगे यार असी सुनिया है नाल नहीं लैके जान देंदे है, नाल नहीं लैके जान देंदे है, तो जिन्हें नाल ही नहीं जाना तो फिर उन्होंने बनाना की, असी तो इकट्ठा करन डे जो नाल लैके जाना है। तुसी प्लाजा बनाओ मैं नहीं मोड़दा है, लेकिन पुत्र वो भी इकट्ठा करो जड़ा नाल लैके जाना जी। प्लाजा इत्थे ही रह जाना जी, कार इत्थे रह जाना जी, गड्डियां सीटां सब इत्थे रह जानी, उत्थे नहीं जाना। और फिर जो मैं आगे भी पढ़ता हूँ आज भी मैं उसी पे बस कर देता हूँ, कीम साहब का शेर, जब तक चले जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी, जब तक चले
खूब चलाई साय अपने दी यारी ला सट फा जंजाला वाले तिला अल्लाह नल यारी है। यारी ला लो यार, यारी ला लो, वक्त जांदा जी प्यार।